Hello guys, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. My name is Piyush Agarwal and I have cleared several banking exams, that is RBI Assistant, IBPS RRB PO, SBI Clerk, and the result of IBPS PO and IBPS Clerk are still awaiting. And I have also appeared for SBI PO and I have reached till the interview. So there are many questions which bank aspirants opt for. So I will try to answer some of them. So let's start. The first question is, there are so many bank exams throughout the year. Should I write all or pick one or two and focus on them? So हमें कोई एक या दो स्पेसिफिकली कोई बैंक एग्जाम्स को लेकर तैयारी नहीं करनी चाहिए. हमें अपनी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक 4 to 5 सब्जेक्ट्स उस सभी की प्रिपरेशन बढ़िया कर लेनी चाहिए ताकि हम सारे एग्जाम्स में अपियर कर पाएँ एंड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर पाएँ. अगर हम एक या दो में अगर लगे रहे तो हो सकता है कि वो हमारा क्रैक ना हो और हमें डिसअपॉइंटमेंट मिले. द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स कैन आई गिव आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम. सो आई थिंक इट इज़ बेस्ड ऑन द एज क्राइटेरिया लाइक 28 या 30 ईयर्स कुछ था, मैं श्योर नहीं हूँ. सो आप वो चेक कर लीजिएगा. एंड मीन्स 28 एंड 30 ईयर्स तक आप कितनी भी बार जब भी एग्जाम्स आता है आप अटेम्प्ट कर सकते हो. कोई टाइम्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी इस पर. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज what are the things about the RBI assistant exam that most people don't know. RBI assistant exam को सब एक समझते हैं कि एक क्लरिकल एंड असिस्टेंट लेवल का एग्ज़ाम है एंड इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू POs. बट मेरा ऐसा मानना नहीं है. मैं तो इसको PO से ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंस देता हूँ. एंड इवन इफ आई गेट इन SBI PO और IBPS PO आई विल स्टिल गो फॉर RBI assistant. The fourth question is top 3 tips for quants. तो क्वांट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग रखें एंड ट्राई टू सॉल्व मैथ्स विथ योर मेंटल एबिलिटी. लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो विथ माय फादर इन द वेजिटेबल मार्केट, ही यूज्ड टू सॉल्व इन सेकेंड्स. देन आई यूज्ड टू कम होम एंड आस्क हिम दैट हाउ यू डिड इट. देन he told me, he gave me the tips that you should be able to solve in mind. So that you can do and practice for quants. And same, the fifth question is top 3 tips for reasoning, but the same goes for reasoning. All the practical subjects requires practice. So the more you practice, the more you can ace them. And the top 3 tips for English. For English, I will be giving only one tip, that is increase your reading. The more you read, the more you can score in English. And first you can read any of the subjects, any of the topic which you like. Then you will have to switch to The Hindu or Economic Times so that you can score better marks in English. And if you want to be an average student in English, then do not go for The Hindu, but you have to increase your reading. And the next question is top 3 tips for GA. For GA, I will suggest all of you to note it daily wise, because अगर आप डेली GA नोट करते हो then at the end of the month you will realize that 40% आपका रिकॉल रहता है and for 60% you have to revise for 1 or 2 times. and जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, but 40% आपका रिटेन रह जाता है. तो this is the best tip for GA anyone can give you. And the next question is what is the best time to start preparing for the bank exams. I will not say particularly for the bank exams. आप कोई भी एग्जाम्स को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी बेस होती है क्लास 10 तक. तो अगर क्लास 10 तक अगर आप अच्छे से अपना आपको प्रिपेयर कर लेते हो, लाइक 10 में हमारे सब सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, क्वांट्स. देन वी हैव टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज इटसेल्फ. तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगी. तो इसका कोई प्रिपरेशन का तो कोई स्टेज नहीं होता है, लेकिन जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है. Then the next question is how do I know if I am completely prepared for my exams. completely prepared तो कोई एक टॉपर भी नहीं होता. अभी मैं भी completely prepared नहीं हूँ, मेरे भी कोई अभी वीक एरियाज तो रहते ही हैं. बट अपना आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए हमेशा जब भी एग्ज़ाम देने जाएं. तो आपकी अगर प्रिपरेशन में कुछ लैकिंग भी है तो वो भी फुलफिल हो जाती है. Then next question is do's and don'ts for prelims. Prelims is all about speed. सो जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे हम प्रीलिम्स के लिए उतना अच्छा होगा. पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या चैप्टर वाइज. देन गो फॉर मॉक टेस्ट एंड यू कैन इजीली क्रैक प्रीलिम्स एग्जाम. देन डूज एंड डोंट्स फॉर मेंस के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अप्रोच. अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है मेंस एग्जाम में,
क्वेश्चंस मीन्स राइट क्वेश्चंस करने की, तो आप मेंस एग्ज़ाम कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सब डुएबल नहीं होते। मेंस में टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है, बट हमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि ईजी होते हैं, हमें वो पिक करना आना पड़ेगा। एंड अगर हम वो कर लेते हैं तो हम मेंस भी इजीली क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज डूज एंड डोंट्स फॉर एलपीटी। एलपीटी के बारे में किसी को पता नहीं भी होता है। जो भी अगर एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका 10 एंड 12 तक एलपीटी लोकल लैंग्वेज था, जिस जोन से स्टेट से आपने अप्लाई किया है, तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में ऐसा है कि अगर आप पीएचडी भी कर लो वो लैंग्वेज पर, फिर भी आपको वो एलपीटी तो देना ही पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप थोड़े अपने लोकल लैंग्वेज में वीक हो, तब आप स्टार्टिंग से जब भी प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे you also try to learn the local language, whether it be writing or reading. Do not give much time in that, only you can give 15 to 20 minutes or half an hour, and it will be more than enough. Okay, the next question is what do I do if I don't know most of the questions in the interview? तो आरबीआई असिस्टेंट में तो मेरा इंटरव्यू था नहीं, लेकिन मैंने अभी 3 इंटरव्यूज़ रिसेंटली दिए हैं, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का। एंड मुझे समझ में आया कि अगर आपको क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं, तो आप सिंपली उन्हें बता दो कि आई डोंट नो अबाउट इट, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, और आई विल अपडेट माई सेल्फ ऑन इट। क्योंकि अगर आप गेम खेलना चाहोगे या गैस वर्क करना चाहोगे, तो वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं, काफ़ी हाई पोस्ट पे भी होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिटीज द पैनल वांट्स टू सी इन द इंटरव्यू। ये क्वेश्चन मैं शायद अभी आंसर करने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे सारे इंटरव्यू के स्कोर आउट हुए नहीं हैं। लेकिन एक मिथ होता है कि जैसे कि कोई बोलते हैं अगर आपका इंटरव्यू लास्ट में है तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन मेरा एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू था वो एकदम लास्ट में था, एंड मुझे काफ़ी ड्रिल किया गया, काफ़ी देर तक मेरा इंटरव्यू चला। बट आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू था वो भी मेरा अनफॉर्चुनेटली लास्ट में था, मुझे काफ़ी रुकना पड़ा, बट उसमें मेरा 5 मिनट्स भी नहीं लगा वो इंटरव्यू में। तो आई डू नॉट नो देयर मेंटेलिटी एग्जैक्टली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई नो इफ़ माई इंटरव्यू वॉज गुड और बैड। जब भी आप इंटरव्यू देकर निकलते हो, तो आपको पता नहीं होता, कभी तो आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू काफ़ी ख़राब गया है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो पता चलता है कि इट वाज द बेस्ट इंटरव्यू। एंड कभी लगता है अच्छा हुआ है एंड मार्क्स अपोजिट आते हैं। तो वो उनकी मेंटेलिटी के ऊपर होता है, उनकी थिंकिंग के ऊपर होता है, इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सो मैनी पीपल स्कोर फुल मार्क्स इन द इंटरव्यू। अभी एक मैं असम से हूँ, एंड असम के एक लड़के ने फुल मार्क्स स्कोर किया था इंटरव्यू में, एंड ही ऑल्सो पोस्टेड ए इंटरव्यू इन द यूट्यूब, ए वीडियो इन द यूट्यूब, एंड उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है इंटरव्यू में, बट आई एम नॉट श्योर फॉर डेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क एक्सपीरियंस बिफोर द बैंक जॉब्स हेल्पफुल। वर्क एक्सपीरियंस चाहे वो बैंक जॉब हो चाहे कोई भी सेक्टर में हो, अगर आपके पास रहता है तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो श्योरली हेल्प करता ही है। अगर आपके जॉब में इंसर्ट करते अगर ना करें, तो लेटर लाइफ में तो आपके ज़रूर करेगा वो कभी ना कभी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम वेरी बेसिक और डायरेक्टली स्टार्ट विद बैंकिंग एग्जाम सेंटर्ड रिसोर्सेज। If you are very weak in the subject, you should start with the very basic, and if you know something about the subject, then you can go for the banking resources. The next question is how to make my basics like calculation strong. So as I already told, it is all about practice. The more you practice, the more speed you will get. So calculation में खाली speed ही चाहिए हमें, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हैं। कुछ भी अगर आप करो, एरिथमेटिक करो, डीआई करो, आपकी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। ऐसा भी नहीं कि आपको खाली सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ही करके अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू टेल दैट आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी या आपके मॉक टेस्ट इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपकी मिस्टेक्स होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो दिस वेयर ऑल द क्वेश्चंस विच आई हैव कम थ्रू, and if you have more questions on the banking preparation, then you can comment in the comment box and I will try to answer them, and hope I have answered it correctly and you like my answers. So thank you and bye bye.